Then we move on to project timeline, study area profile, average demand model, and finally we discuss the CMP strategies and summary of proposal, institutional mechanism, and implementation plan and costing, which we have developed through this extensive experience, accessibility and mobility plan, parking studies, MMI studies, TNPs, and non-motorized transport related studies, and ITS related projects. We have clients or Faridabad Smart City Limited has appointed BMPC for preparation of the CMP for the Faridabad city. What is the CMP? A CMP 2040. What is the need for the CMP? Well, the CMP for Faridabad was prepared in 2010 and very good, and the CMP budget also suggests to 10 years. And in the recent past, there has been a lot of influx of people due to industrialization, and which has led to increase in private motorized transport, and also leading to the available transport, public transport, which is available in the city becoming inadequate. Registered vehicles data from RTA, and public transport routes operational under public transport corridor was collected from Haryana Roadways, and air quality details from PCB, CD and HS. 9100 samples. Origin destination survey, petrol pump survey, tourist survey. So through all this primary and secondary data study, we established what are the issues that are present in the system, city, and what are the existing systems available. And we found that there is unclear road network pattern, and in terms of what we are trying to achieve in terms of the mobility within the city, and in line with the NUTP policy, we have tried to see which is. Thank you, ma'am. So 8 major strategies have been divided. अच्छा The final development plan. the final development And sir, and what are the deadlines of this? The existing land use as on which date or as when? Sir, existing land use, when we were collecting data, and that was back in 2019, we had contacted this Buda town and the base map is the final development plan. So this shows only the proposed, whatever was brought into the reality, how it shaped into the reality. I suppose they have not taken that into account. And Ma'am, this has been taken from the 2018 final development plan. there is 2% is open spaces parking green belt. You are saying 8.4% is either your definition or demarcation of the lands is Sir, inappropriate. it includes parks and green belt also, which are planned. What is the overall? FMDA की मीटिंग लेने पहुंचे हैं फरीदाबाद, प्रेजेंटेशन देखा है, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर खाते हैं क्या क्या और कौन कहेंगे नहीं, आज हमने जो फरीदाबाद के लिए फरीदाबाद स्मार्ट सिटी ऑर्गेनाइजेशन ने जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया है, आज उसकी समीक्षा की है एफएमडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें हमने कुछ एडवाइज़र्स को भी, एडिशनल एडवाइज़र्स को भी हमने बुलाया था यहाँ पे, सभी अधिकारी यहाँ पर हैं। और इसके ऊपर दोबारा से चर्चा हुई है कि कोई ऐसा पॉइंट रह तो नहीं गया है जिसके बाद में हमें इम्प्लीमेंटेशन करने में हमें किसी तरह की समस्या है। तो ये अच्छा प्लान तैयार हुआ है। लैंड को लेकर एक समस्या आ रही है कि लैंड यूज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। नहीं, लैंड यूज़ नहीं, वो समस्या तो ये है कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होगी, तो ज़मीन एक्वायर की जानी होगी, या अगर किसी सरकारी एजेंसी के पास अगर ज़मीन है तो उनसे ज़मीन ट्रांसफ़र की जानी होगी। तो अभी तो क्योंकि एक वाइड कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बना है और 2041 तक के लिए बना है, तो उसमें इतनी डिटेलिंग तो नहीं हो सकती कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी ज़मीन हमें चाहिए। कि उसका जब उसकी डीपीआर बनेगी तो उसके बारे में भी विचार होगा कि कहाँ पे बन सकते हैं। जैसे बस टर्मिनल्स हैं तो कहाँ पर बन सकते हैं, डिपोज़ कहाँ पर बन सकते हैं, मेट्रो स्टेशंस कहाँ पर आएंगे, वो सब अलाइनमेंट, उसकी अलाइनमेंट और उसके स्पेसिफिक डिसीजन उसी समय पे किए जाएंगे। सिटी बस चलाने की बात की जा रही है, 40 बसें फरीदाबाद में चलनी है एफएमडीए के माध्यम से, कब तक शुरू हो जाएंगे, क्या प्लान? उसमें से ऑलरेडी 22 बसें तो ऑलरेडी उसमें से चल रही हैं, और 2 रूट्स के ऊपर असल में बसें नहीं चल पाई थी क्योंकि बदरपुर बॉर्डर पे जो टॉल है उससे पहले जो कट था वहाँ से वो बसें यू टर्न नहीं ले पाती थी। तो हमने उनको एनएचआई को रिक्वेस्ट किया है कि उस कट को थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि उसमें से बसें हमारी यू टर्न ले पाएँ। तो वो उन्होंने मान भी लिया है और वो कर रहे हैं। वो तो जी, एक बड़ा शहर बस चुका है, लेकिन वहाँ अभी कोई सिटी बस की सुविधाएं नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उसको लेकर क्या प्लान है? अभी प्लान उसके लिए तैयार कर रहे हैं। अभी सीएमपी में भी ये आपने देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 63% 2041 तक 63% यातायात की जो ज़रूरतें हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पूरी होंगी।
तो ये तो प्लान करेंगे और करते ही रहेंगे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सर ऐसी कोई सूचना है कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा गया है कि बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए प्लान किया जाए, कुछ आपकी जानकारी में, क्योंकि आप एफएमजी के? मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये हमारे विचार में ज़रूर है कि ऐसा होना चाहिए, और हमारे सीएमपी में भी इसको रिफ्लेक्ट किया गया है कि ये कनेक्शन होना चाहिए, मेट्रो कनेक्शन भी होना चाहिए और रोड कनेक्शन भी होना चाहिए। क्या ये 20 साल का प्लान लेके चल रहे हैं आप 2041 तक का? हाँ, 2041 तक का 20 साल का प्लान लेके चल। जिस तरह से प्रेजेंटेशन देखी जाती है सर, बड़े ऐसा लगता है जैसे भविष्य के बड़े सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जमीन पर इस तरह की? आपको क्या ऐसा लगता है कि भविष्य सुनहरा नहीं है? डॉक्यूमेंट तो नहीं भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है और फरीदाबाद का भविष्य भी बहुत सुनहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू।